Hello students, let's talk about today another important topic of the chapter Establishment of Company Rule in India, that is Anglo-Maratha War. Anglo means that is we are talking about English. So English Maratha War, the war that took place between the Britishers and Maratha in our country. So before discussing the Anglo-Maratha War, you see the extent of the Maratha Empire. You see, after the downfall of the Mughal Empire, the Marathas established the most extensive empire in India. Okay, if Maratha would not have been completely subdued by the Britishers, then the Maratha would have successful in establishing an all India empire. See the extent of the Maratha Empire in the map. It was the largest empire established in India after the downfall of the Mughal Empire. So three Anglo-Maratha war took place. First Anglo-Maratha war, see the date 1775 to 1782. Then second Maratha war 1803 to 5, and the final Maratha War, that is the third Anglo-Maratha War 1817 to 1818. Okay. In the first Maratha War, the British Governor General was Warren Hastings. In second Anglo-Maratha War, it was Lord Wellesley, and in the third Anglo-Maratha War, Lord Hastings was the Governor General of India. Now let's talk about the first Anglo-Maratha War during the period of 1775 to 82. The ground for the war was created after the death of Peshwa Madhav Rao first in 1772. Now students, listen one thing, that in Maratha, the main power was in the hand of the Peshwa. Okay, the main power was in the hand of this Peshwa. Although there was the king, राजा होता था, लेकिन जो राजा का जो महामंत्री होता था ना, उसको पेशवा कहते थे मराठा एम्पायर में, और पेशवा के पास ही सारा पावर होता था, रियल पावर होता था. ओके, सो we find that there was one Peshwa whose name was Madhav Rao first. He died in 1772. Then after his death, he was succeeded by his brother Narayan Rao as the new Peshwa. But what happened just after 1 year in 1773, Narayan Rao he got murdered by his uncle Raghunath Rao. Raghunath Rao जो उसके चाचा थे, उन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी. Why? Because Raghunath Rao himself wanted to become the Peshwa. Okay. After killing his nephew Narayan Rao, Raghunath Rao declared himself to be the Peshwa, but he was not accepted by the other Maratha chieftains. The other Maratha chieftains, they did not recognize him. They did not recognize Raghunath Rao, and in his place they declared Savai Madhav Rao. Savai Madhav Rao कौन था? He was the son of Narayan Rao, जिसको रघुनाथ राव ने मार दिया था. उसी का जो इन्फेंट बेटा था, जस्ट वो जन्म लिया था, उसी को माधव राव, सवाई माधव राव के नाम से नया पेशवा बना दिया गया. तो ऑब्वियसली दिस ग्रेटली एंगर्ड, गुस्सा किसको आना था? रघुनाथ राव को. ओके, तो व्हाट रघुनाथ राव डिड इन फ्यूरी, इन एंगर, ही सॉट द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. वो अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों से मदद मांगी. कुछ टेरिटरी का लालच दिया अंग्रेजों को कि भाई आप हमारी मदद कीजिए तो हम आपको ये सारे टेरिटरीज दे देंगे, है ना. अंग्रेज भी चाहते थे कि हम मराठों के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करने का मौका मिले. तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पूरा हेल्प किया, सपोर्ट किया, है ना, और रघुनाथ राव को सेना दे दी टू फाइट अगेंस्ट द पेशवा, टू फाइट अगेंस्ट हिज ओन मराठा ब्रदर्स. So this was the background. Now the first Maratha war began. It was continued for many years and it ended without any victory from either sides. कोई भी जीता नहीं, ना तो मराठा जीता और ना ही अंग्रेज जीत पाए. And finally the war was brought to an end by the Treaty of Salbai. See, this is Treaty of Salbai. You should remember it. The first Maratha war came to an end
by signing the Treaty of Salbai in 1782. And under this treaty, what happened? See, under this treaty, Savai Madhav Rao was recognized as the Peshwa. सवाई माधव राव को पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया कि ठीक है भाई, सवाई माधव राव पेशवा रहेगा, और बदले में रघुनाथ राव वो अब क्लेम छोड़ देगा, वो अब दावा नहीं करेगा कि मैं पेशवा हूँ। बदले में रघुनाथ राव को हर महीने पेंशन दी जाएगी उसके खर्च के लिए, है ना, उसके खर्चे के लिए उसको पेंशन मिल जाया करेगा हर महीना। बस रघुनाथ राव जो है वो पेशवा का दावा जो वो करता था वो छोड़ दे, है ना, छोड़ भी दिया उसने, और सवाई माधव राव वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द पेशवा। सो this was the war which was started because of this foolishness of Raghunath Rao, and finally the war ended with the Treaty of Salbai that was signed in 1782. And after 20 years of this treaty, we do not find any war between the Maratha and the Britishers. मतलब इस ट्रीटी ने लगभग 20-25 साल तक शांति स्थापित कर दिया मराठों और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद बहुत साल तक लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि द सेकंड वर्ल्ड वार, सॉरी नॉट सेकंड वर्ल्ड वार, द सेकंड एंग्लो मराठा वार स्टार्टेड। सी, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड मराठा वार, लेट्स टॉक अबाउट द मराठा कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है ग्रुप। मराठों का 5 ग्रुप था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, 5 ग्रुप था। ये 5 ग्रुप बने थे जनरली पेशवा माधवराव फर्स्ट के समय में। ये 5 ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप था मराठों का, दैट वाज पेशवा। ये पेशवा को आप देखिए, ही वाज द सुप्रीम, ही वाज द मेन ग्रुप ऑफ द मराठास विथ इट्स हेडक्वार्टर, इसका कहाँ था, पूना में। देन सेकंड सिंधिया, सेकंड ग्रुप वाज द सिंधिया, इट्स हेडक्वार्टर वाज एट ग्वालियर। देन होलकर, हेडक्वार्टर एट इंदौर। देन भोसले, हेडक्वार्टर एट नागपुर। And last, Gaikwad, its headquarter was at Baroda, Gujarat. Okay, so the Marathas were divided into 5 groups. Okay, and these groups used to work in unity and close cooperation with each other. But after 1800, we find that these Maratha groups started fighting among themselves due to their mutual rivalry and jealousy. And the Britishers took advantage of this situation. See, what happened? There were constant conflict among the Maratha chief. इनमें आपस में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी ये 5 ग्रुप में। कभी सिंधिया होलकर से लड़ रहा है, होलकर भोसले से लड़ रहा है, भोसले पेशवा से लड़ रहा है। ये लड़ाई अक्सर इन लोगों की होते रहती थी। इसकी वजह से मराठा कमज़ोर भी हो गए थे, क्योंकि अब उसमें पहले जैसी जो है यूनिटी अब नहीं रही। तो क्या हुआ, इन 1802 होलकर, जो एक ग्रुप था मराठों का, होलकर, ही अटैक पेशवा। पेशवा वॉज डिफीटेड एंड ही फ्लेड टू बैसिन। बैसिन एक जगह है बॉम्बे के पास, वहाँ पे पेशवा वहाँ भाग के चला गया। और पेशवा ने क्या किया, ठीक है, होलकर से तो वो हार गया, तो पेशवा ने मदद मांग ली फिर अंग्रेजों से। जैसे रघुनाथ राव ने मदद मांगी था ना, वैसे पेशवा बाजीराव सेकंड ने मदद फिर मांगी अंग्रेजों से। और आपको जानकारी के लिए बता दो कि पेशवा बाजीराव सेकंड कौन था पता है? ही वॉज द सन ऑफ रघुनाथ राव। तो जिस तरह रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी, पेशवा बाजीराव सेकंड ही ऑल्सो सॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश, कि सर हेल्प मी प्लीज अगेंस्ट होलकर हु हैज ड्रिवन मी फ्रॉम माय ओन रीजन। एंड इंग्लिश से तो मदद मांगी, तो अंग्रेजों ने उनको एक ट्रीटी साइन करवाया अपने साथ कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले ट्रीटी साइन करिए। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बसाइन। Treaty of Basaine. The name of treaty was Basaine with the Governor General Lord Wellesley. Lord Wellesley was the Governor General at that time, and this Treaty of Basaine was signed in 1802. Now, what was this treaty? The treaty allowed the company's troop to be stationed at Peshwa's capital, and Peshwa was required to pay its expenses also. मतलब क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत जो है ना, अब अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी पेशवा अपने कैपिटल में रखेगा और उसका खर्च भी पेशवा ही उठाएगा। और पेशवा जो भी काम करेगा, मान लीजिए किसी स्टेट के खिलाफ वो लड़ रहा है या कोई संधि साइन कर रहा है, तो वो अब अंग्रेजों से पूछ के करेगा। मतलब कहने का यह है कि आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बसाइन, द पेशवा केम अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब पेशवा तो हेड था, अब जब वो अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया, तो दिस वाज नॉट लाइक बाय द अदर मराठा चीफ, पर्टिकुलरली सिंधिया
है ना। देखिए सिंधिया और भोसले को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि पेशवा कंट्रोल में जाने का मतलब क्या है, पेशवा अगर कंट्रोल में चला गया तो मतलब ऑटोमेटिकली सारे मराठा ग्रुप अंग्रेजों के कंट्रोल में चले जाएंगे, तो पेशवा की वजह से हम क्यों भुगते भाई। तो सिंधिया और भोसले को ये पसंद नहीं आया, दे वर नॉट इंक्लाइन टू सबमिट, एंड व्हाट दे डिड, दे डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड दिस वाज द सेकंड मराठा वार दैट started in 1802 and lasted till 1805. And in this Maratha war, the Maratha groups, both these Maratha groups were defeated and they were forced to sign separate treaty with the British. अंग्रेजों के साथ दोनों ग्रुप को सेपरेट ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी. दिस वाज द सेकंड एंग्लो मराठा वार इन विच ऑन द वन साइड देयर वर सिंधिया एंड भोसले, ओके, एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज द ब्रिटिश. तो पहला मराठा वार जो हुआ था रघुनाथ राव की वजह से हुआ था, देखा जाए तो, है ना. और दूसरा मराठा वार हुआ था उसी के बेटे की वजह से, जो था बाजीराव सेकंड. उसी का बेटा जो है पेशवा बन गया था बाद में बाजीराव सेकंड के नाम से, एंड ही वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा. तो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड एंग्लो मराठा वार. नाउ लेट्स सी द थर्ड मराठा वार. इट वाज द लास्ट मराठा वार. पेशवा बाजीराव सेकंड, इन्होंने तो एक साइन कर लिया ट्रीटी ऑफ बसाइन, लेकिन बाद में पेशवा ने रियलाइज किया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह की ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब मैं अंग्रेजों का गुलाम बन गया. नाउ आई हैव बिकम पपेट एट द हैंड ऑफ द इंग्लिश. वॉट एवर द ब्रिटिशर्स से आई हैव टू अबाइड, आई हैव टू फॉलो इट. तो लेटर ऑन पेशवा रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसाइन. सो व्हाट पेशवा बाजीराव सेकंड डिड, ही मेड एन अलायंस विद द टू ग्रुप्स भोसले एंड होलकर. भोसले और होलकर के साथ उसने एक अलायंस बनाया. ठीक है, भोसले और होलकर के साथ मिलकर उसने एक अलायंस बनाया कि चलो हम लोग मिलकर एक लड़ाई लड़ते हैं, ये आखिरी लड़ाई होगी, फाइनल लड़ाई होगी, और अंग्रेजों को पूरी तरह से जो है ना, वी विल ड्राइव देम आउट ऑफ द मराठा किंगडम, पूरी तरह से मराठा किंगडम से खदेड़ देना है अंग्रेजों को. ठीक है, तो तीनों ने मिलकर अलायंस बनाया एंड दे डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बट अगेन वी फाइंड the Britishers came out victoriously and all the Maratha chiefs, including Peshwa, were defeated. They were defeated. Now what were the result of the third Maratha war? Peshwaship was abolished by the Britishers. अब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कोई पेशवा नहीं रहेगा, पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया. Peshwa was given a pension of 8 lakh rupees a year and sent to spend his last day at बिठूर नियर कानपुर. पेशवा को पुणे छोड़ के जाना पड़ा. उसको कानपुर के एक छोटे से गांव बिठूर में भेज दिया गया कि आप वहीं रहिए आराम से, आपको 8 लाख रुपया हमें सालाना पेंशन दे दिया जाएगा. अब आप मराठा किंगडम, अब आप पुणे में नहीं रहेंगे. तो पुणे में अब कौन रहेगा, या पूरे मराठा किंगडम में अब कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स. नाउ द ब्रिटिशर्स हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द होल मराठा किंगडम. The Britishers now had complete control over the whole Maratha kingdom after the third Maratha war. And in this way, you find that the Maratha dream of establishing an all India empire like that of the Mughals shattered after the third Maratha war. मराठों का जो सपना था कि मुगलों की तरह हम भी पूरे इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे, उस सपने को अंग्रेजों ने चकनाचूर कर दिया, है ना. और who was the Governor General who played a very important role in defeating the Maratha forces in the third Maratha war? He was none other than Lord Hastings. उनका नाम क्या था? See his photo. He was Lord Hastings. ओके, और ये जो बैटल जो दिया हुआ है बगल में, द बैटल ऑफ खड़की, ये एक लड़ाई हुई थी थर्ड मराठा वार में, है ना. दैट वाज वन ऑफ द बैटल फॉट in the third Maratha war in which Peshwa was defeated by the Britishers. So in this way we find that after Bengal, Mysore, Maratha, the whole Maratha kingdom also now came under the direct control of the Britishers. Okay students, hope you will get to know clearly about all the Maratha wars. Okay, thank you.